नहीं मैडम कुछ नहीं के.ई. प्रकाश जी आप बोलिए। மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, और लोगों को इस अवैध खनन को रोकें। धन्यवाद मैडम। மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, எனது ஈரோடு நாடாளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட தாராபுரம், காங்கேயம், மொடக்குறிச்சி, ஈரோடு கிழக்கு, ஈரோடு மேற்கு, குமராபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதி மற்றும் சென்னிமலை பகுதிகளில் தெருநாய்கள் மற்றும் நோய்வாய்ப்பட்ட வெறிநாய்கள் மற்றும் காணப்படுவதால் பொதுமக்கள் மிகவும் அச்சத்திற்குள்ளாகியுள்ளனர். இதில் கிராமப்புறங்களில் விவசாயிகள் கடும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளார்கள். இவருடைய வளர்ப்பு பிராணியான ஆடு, மாடு, கோழிகள் மற்றும் நோய்வாய்ப்பட்ட வெறிநாய்களின் தாக்குதலால் அவ்வகை பிராணிகள் இறப்புக்குள்ளாகி விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. வீட்டில் வளர்க்கும் நாய்களில் நோய்வாய்ப்பட்டு அது வெறிநாயாக மாறும்போது குழந்தைகள் பாதிப்புக்குள்ளாகி உயிரிழப்பு ஏற்படுகிறது. இதனால் ஒன்றிய அரசு நோய்வாய்ப்பட்ட நாய்களின் தாக்குதலுக்குட்பட்ட பிராணிகளுக்கு கணக்கெடுப்பு நடத்தி ஒன்றிய அரசு விவசாயிகளுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வேண்டுகிறேன். அதே சமயம் நோய்வாய்ப்பட்ட நாய்களை கட்டுப்படுத்த ஒன்றிய அரசு சட்டம் திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும். மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நோய்வாய்ப்பட்ட பாதுகாப்பற்ற வெறிநாய்களை கட்டுப்படுத்த ப்ளூ கிராஸ் அமைப்பு மற்றும் அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டு ஆஃப் இந்தியா எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் என்ன என்று தெளிவுபடுத்த வேண்டும். அதேபோல வரும் காலங்களில் பாதிப்பு ஏற்படும் போது விவசாயிகளுக்கு பொருளாதார இழப்பு ஏற்படாத வகையில் வீட்டு வளர்ப்பு பிராணிகளுக்கு ஆடு, மாடு, கோழி போன்றவைகளுக்கு ஒன்றிய அரசு உயிர் காப்பீடு செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு மூலியமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். தமிழ்நாடு போராடும், தமிழ்நாடு வெல்லும். माननीय सदस्य श्री YS अविनाश रेड्डी जी। Thank you, madam. I would like to draw the attention of the House about the decision of the government to relocate the headquarters of Andhra Pragati Gramina Bank from Kadapa to Amaravati. Madam, Andhra Pragati Gramina Bank, established in the year 2006 at Kadapa as head office, manages business volume of 46,000 crores with nearly 3,000 staff members. It plays a crucial role in financial inclusion of rural and underserved communities, making it one of the largest RRBs in India. APGB has a wide network of 551 branches spread over 10 districts of Rayalaseema backward region, namely Anantapuram, Satyasai district, Annamaya district, YSR Kadapa district, Kurnool, Nandyal, Tirupati, Nellore, Bapatla and Prakasham districts of Andhra Pradesh. Madam, the government's decision of shifting the head office to Amaravati will increase operational expenses, reduce accessibility and alienate rural customers. The central location of the headquarters of this bank at Kadapa within its operational area is more conducive to fulfilling the bank's mandate. In view of the inconvenience and possible financial loss, on behalf of our backward area of Rayalaseema region people, we strongly urge the government not to shift the headquarters of Andhra Pragati Gramina Bank from Kadapa, madam. Thank you. माननीय सदस्य श्री विजय बघेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। वैसे तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री जी के विशेष प्रयास से जन जन तक स्वास्थ्य की योजनाएं पहुंच रही है, दूरस्थ स्थल तक पहुंच रही है। कुछ विशेष सुविधा मेरे क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत मिले, ये अनुरोध मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं। दुर्ग जिला चिकित्सालय में जच्चा बच्चा वार्ड का एक्सटेंशन भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतई को आयुष्मान भारत योजना के तहत नवीन भवन तथा दुर्ग बेमेतरा जिला के ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र जो आयुष्मान भारत योजना के लाभ से वंचित है, उन्हें इस योजना में सम्मिलित कर लाभ प्रदान किए जाने का अनुरोध पुनः आपके माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजीव राय जी। धन्यवाद मैडम।
मैडम, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के उस इलाके से आता हूं जहां सबसे ज़्यादा लोग सेना में हैं और पैरामिलिट्री में, और सबसे ज़्यादा शहीद भी हैं। मैडम, आज भी आप हमारे यहाँ सुबह सड़कों से निकलेंगी तो देखेंगे कि सड़कों के दोनों तरफ नौजवान इस उम्मीद में दौड़ लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं उनकी भर्ती हो जाएगी। हालांकि आपने उन अरमानों का गला घोट दिया सरकार ने, जो पूरी जिंदगी सेना को, देश को न्यौछावर करना चाहते थे, अग्निवीर लाकर, जिसको हम तो जब मौका मिलेगा बंद करेंगे ही करेंगे। तब तक मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि हमारे यहाँ मैडम कोई उद्योग धंधा नहीं है, कोई रोजगार के साधन नहीं है। हमारे यहाँ जो किसान भी है छोटे छोटे हैं, हमारे यहाँ किसानों की हालत मजदूरों से भी बदतर है। उन घरों के बच्चे, मऊ के, बलिया के, आसपास के पूर्वांचल के घरों के बच्चे इस उम्मीद में रहते हैं कि सेना में या पैरामिलिट्री में नौकरी लग जाएगी तो शायद उनकी ज़िंदगी भी पटरी पर आ जाएगी और देश की सेवा भी कर पाएंगे। समस्या ये है कि एक तो ऑलरेडी बहुत गरीबी है, हमारे यहाँ से भर्ती कैंप, भर्ती केंद्र है बहुत दूर हैं, और सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला इलाका है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मऊ में सेना और पैरामिलिट्री के भर्ती के कैंप और उनकी भर्तियों से पहले और ट्रेनिंग देना शुरू कर दे, जिसमें टेक्निकल जानकारी के अभाव में, मेडिकल जानकारी के अभाव में बहुत सारे छट जाते हैं। तो चूंकि जो उद्योग नहीं है, बेरोजगारी है, कोई माँ के पेट से अपराधी पैदा होकर नहीं आता मैडम। जो अपराध की संख्या बढ़ी है, बेरोजगार होते हैं, कोई साधन नहीं होते हैं, तो ऐसे नौजवानों को भर्ती कर देश में सेवा करने का मौका दिया जाए। मऊ में भर्ती का केंद्र खोला जाए और भर्ती से पहले प्री जो ट्रेनिंग होती है, मेडिकल की हो, टेक्निकल की हो, देने की कृपा करें, जिससे बेरोजगारी की भी समस्या दूर होगी, देश की सेवा भी दूर होगी। और पुनः दोहराता हूँ, अपने लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी मौका मिलेगा अग्निवीर को खत्म कर पूरी जिंदगी आपको सेवा का मौका दिया जाएगा। माननीय सदस्यगणों, अब मैं शून्यकाल की कल की सूची ले रही हूँ। समय की कमी है, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि केवल एक मिनट में अपनी बात रखें ताकि सभी माननीय सदस्यों को मौका मिल सके। माननीय सदस्य श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदया। सिरपुर 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच दक्षिण कोसल साम्राज्य की राजधानी था और इसका ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है। यहाँ स्थित लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर, बौद्ध विहार और जैन विहार जैसी संरचनाएं उस समय की अद्वितीय वास्तुकला को प्रदर्शित करती हैं। सिरपुर में किए गए उत्खनन में 12 बौद्ध विहार, 1 जैन विहार, बुद्ध और महावीर की मूर्तियाँ, शिव और विष्णु मंदिर, भूमिगत अन्न भंडार और स्नानघर जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएं सामने आई हैं, जो इसके सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि को दर्शाती है। विशेष रूप से सिरपुर की तारा की मूर्ति कला और शिल्प की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि यह भगवान राम के बेटे कुश की राजधानी थी। महोदया, जिनका इतिहास नहीं होता और जिन्हें अपने इतिहास पर गर्व नहीं होता, उनका वर्तमान भी नहीं होता। यह पंक्ति सिरपुर के ऐतिहासिक महत्व को और भी गहरा बनाती है, क्योंकि यह स्थल भारतीय इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इसका संरक्षण न केवल छत्तीसगढ़ अपितु संपूर्ण राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को विश्व पटल पर संपूर्ण राष्ट्र को गौरवान्वित करेगा। इसलिए मेरा प्रश्न माननीय संस्कृति मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह है, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सरकार सिरपुर के उत्खनन, संरक्षण और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है? साथ ही क्या सिरपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने की सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है? धन्यवाद। रमन सिंह जी। बहुत बढ़िया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र नैनी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बसाया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने उसको बसाया था, जहां मशीनों की घनघनाहट से पूरा औद्योगिक क्षेत्र गुंजायमान रहता था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ITI में 5000 लोग कार्यरत थे, BPCL में 600 कर्मचारी, TSL में 1500 कर्मचारी, हिंदुस्तान केबल में 900 कर्मचारी कार्यरत थे। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां रेमंड सिंथेटिक्स में 4000 कर्मचारी, यूनिवर्सल टायर में 400 कर्मचारी, डेव मेडिकल में 450 कर्मचारी, TW में 600 कर्मचारी और GEC में 700 नियमित कर्मचारी और स्वदेशी कॉटन मिल में
2200 कर्मचारी कार्यरत थे। आज सारी की सारी कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि 16,000 नियमित कर्मचारी थे परोक्ष रूप से और 6,000 मजदूर कार्यरत थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, इतनी महिमा और गुणगान किया गया प्रयागराज का, लेकिन नैनी औद्योगिक क्षेत्र की ओर जहां देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था इसके पुनरुद्धार के लिए, लेकिन आज सारी की सारी कंपनियां जिनका मैंने नाम लिया है, आज वहां पर सीआर बोल रहे हैं, सारी कंपनियां बंद हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, अपील करूंगा, धन्यवाद नैनी औद्योगिक क्षेत्र को चलाने की ओर ध्यान दे और सरकार से कहूंगा अगर ये नैनी औद्योगिक क्षेत्र चल गया तो पूरे प्रयागराज की जो समस्या है, जो हमारी समस्या है नौकरी की, वो दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी। हाँ, शुक्रिया मैम। महानंदा बेसिन के लिए मैं रिक्वेस्ट करने के लिए खड़ा हूँ। ये मसला मैंने कई मर्तबा उठाया। हर साल हमारे हज़ारों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो जाते हैं, घरें बर्बाद हो जाती, गांव बह जाते हैं। मेरी आपके माध्यम से आग्रह है, ख़ास करके महानंदा, कनकई, मेची, डॉक, परमान नदी के किनारे तटबंध होना चाहिए। और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि फ़्लो जहाँ तक है, फ़्लो के 10 मीटर के अंदर अंदर तक ज़्यादा ज़मीन ना लेते हुए, क्योंकि वहाँ ज़मीन की किल्लत है मैम, 10 मीटर के दूर तक आप कंक्रीट वॉल बनवाएं या नहीं तो बोल्डर पिचिंग कराएं। और एनुअल ड्रेजिंग ज़रूरी है, नहीं तो वो बहाव ज़्यादा हो जाता है तो वो ओवर स्पिल कर जाएगा और लेक्स बनेंगे जिसके वजह से नुकसान होगा। इसके अलावा मैम जो सीमांचल फ्लड टास्क फोर्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों को इफेक्ट करता है मैम। और वाटर क्राइसिस हेल्पलाइन होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो एनएमजी से रोक है, खास करके एमयू जमीन, उसको क्लियर करना चाहिए मैम। मनसुख भाई, थैंक यू जी भाई जी। वेरी गुड। है नहीं क्या? नहीं। माननीय सदस्य नामदेव किरसान जी। सभापति महोदया, मनरेगा का श्रमिकों को जो पेमेंट है उनका मजदूरी मेरे संसदीय क्षेत्र में गढ़चिरौली चूरू में अभी तक मिला नहीं। 4-4, 6-6 महीना हो गया उन्होंने मजदूरी की, लेकिन अभी तक उनका पेमेंट या भुगतान हुआ नहीं। सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा श्रमिकों के लिए राज्यों को 6,434 करोड़ रुपए बकाया भी है। वह बकाया 6,434 करोड़ रुपया ये केंद्र सरकार राज्यों को दे और जल्द से जल्द इस मनरेगा में MRES में जिन श्रमिकों ने काम किया है उनका भुगतान जल्द से जल्द करे। उसी तरह किसानों ने खेतों में एक कुआं खोदे इस योजना के अंतर्गत, उसके भी पैसे अभी तक मिले नहीं हैं, उसका भी पैसा भुगतान जल्द से जल्द किए करना चाहिए। और वो केंद्र सरकार राज्यों को अगर ये रकम देगी तो उसका पेमेंट होगा। तो मेरी मांग यही है कि ये करे। और जिस तरह से 100 दिन का उनको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ 50 दिन औसताना मिलता है, तो पूरे 100 दिन का उनको रोजगार मिले, यही मेरी मांग है। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका ध्यान अभी कर्नाटक में जो 4% मुसलमानों को आरक्षण मिला है कॉन्ट्रैक्टरी में, अभी तक तो एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन मिलता था, कहीं नौकरी में रिजर्वेशन बैकडोर से देने की बात आती थी, अब उनको जो है जो ठेकेदारी है उसमें भी उनको आरक्षण मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदया इस देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1919 में जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और 1921 में असहयोग आंदोलन बंद हुआ उसके खिलाफ, तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया। 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके संवित सरकार बनाई और अलग से उनके लिए
वोटर कार्ड हो, अलग से उनका अधिकार हो, इस आधार को बढ़ाते हुए इस देश का बंटवारा कर दिया। ये फैक्ट है कि इस देश का धर्म के आधार पर 1947 में बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। आज जो सिचुएशन है, ये जातिगत जनगणना के नाम पर, मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर, यही कर्नाटक में उन्होंने किया था। ये बैकडोर से ओबीसी का रिजर्वेशन काटकर, क्योंकि अभी तेलंगाना में जो हुआ है, सोरोस के साथ और जर्मनी के एक्सपर्ट के साथ मिलकर उस कमेटी में वो लोग सदस्य थे, और उसमें जो है वो ओबीसी में मुस्लिम को जोड़ने की बात करते हैं, ओबीसी का अधिकार खत्म करने की बात करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने 1921 और 1937 में किया, वही काम ये फिर से करना चाहते हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में केवल मुसलमान की वोट बैंक के लिए उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, भारत के ताने वाने को तहस नहस करना चाहते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और जो 27 कहता है कि इस देश में रिलीजन के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कानून बनाइए और अपोजिशन का जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसको खत्म करिए और मुसलमानों को बैकडोर से कोई एंट्री नहीं दीजिए। माननीय सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या जी। माइक। has raised a very important and serious issue. We will communicate his feeling to the concerned ministry. माननीय सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या जी, आप मैडम 1 मिनट। मैडम इसी से हम एसोसिएट करते हैं। और 30 सेकेंड मैडम, a state should be secular in nature, but through this 4% Muslim reservation, the Congress government in Karnataka is incentivizing religious conversion into Islam, and a secular state cannot take such measures. Madam, itna hi nahi, madam, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड पीएफआई एंड केएफडी, और जो बेकार बैठे हैं पीएफआई के केएफडी के लोग, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से काम देने के लिए कांग्रेस सरकार ने ये काम कर रहे हैं। दिस शुड बी रोल्ड बैक, इसके खिलाफ कानून लेकर आना है। मैडम माननीय सदस्य एडवोकेट फ्रांसिस जी। फ्रांसिस जॉर्ज। माननीय सदस्य फ्रांसिस जॉर्ज जी। Madam, please. Madam, I would like to, Madam Chairperson, I am raising an important, please. Please. Madam, I am raising an important issue concerning the expatriate population of Kerala. Madam, the Air India has announced the stoppage of Kochi-London direct flight effective from March 28. Madam, this service is a vital connection, consistently operating at full capacity and serving as a crucial link for families, students and workers, particularly between Kerala and the United Kingdom. Madam, as it on cue, the Air India Express has also announced the cancellation of an important route, Bahrain, Tirunelveli and Kochi, Delhi, for the summer season. These suspensions will further aggravate the challenges faced by the Kerala's large expatriate population, particularly in the Gulf, and disrupt the travel plans of many returning home during this critical period. Madam, the airlines, they raise the airfares, very unreasonably during this festival and holiday season. Madam, I request the government to give immediate direction to Air India and to Air India Express not to cancel these flights, and also to form an airfare regulatory authority so that this fleecing by the airlines of ordinary travelers, especially Kerala bound, can be stopped. Madam, I request the urgent intervention of the Civil Aviation Ministry to restore these flights and also to form an airfare regulatory authority to help the passengers all over the country, sir. Madam, thank you. माननीय सदस्य श्री श्रेयस एम पटेल जी।
माइक मैडम माइक हाँ इधर चालो इधर Thank you, Honorable Speaker, Madam. I need to highlight pressing issues in my constituency which need urgent attention from the Forest Department about the human and animal conflict, Madam. In just 1 month, 4 people have lost their lives in Harehalli, Bikodu Hobli due to elephant attacks. The situation is out of control in Beluru, Sakleshpur and Alur taluks. Families are grieving, farmers are scared and the livelihoods are at risk, Madam. In past 25 years, around 82 lives have been lost. Farmers are no more they are growing paddies. The coffee plantation has been destroyed. The workers are lost their wages due to fear of their lives, Madam. The elephant population is now around 80 in my region. Removing them from one place to is the only temporary relief, Madam. We need a permanent solution. I urge the ministry through you, Madam, to create a dedicated elephant corridor grant for Sakleshpur and Belur taluks, creating ideal habitat to the elephants that they won't enter the villages again, Madam. The most importantly, I request a dedicated fund under NDRF for Hassan district to compensate the families who are affected, died from the elephant attacks, Madam. This is a crisis. The people of Hassan are tired of living in the fear. We request to action to, Madam. This is my humble request. Kindly take the attention from the Forest Department, Madam. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री असित कुमार मल जी। Thank you, madam, for giving me opportunity. I would like to draw your kind attention to the fact that each and every state of India gets money for Awas Yojana, but only West Bengal is deprived of the funds of Awas Yojana for several years. The Honorable Chief Minister of West Bengal has given rupees 60,000 rupees per beneficiary at first installment, total 12 lakhs beneficiary for Awas Yojana, I think Bangla Badi. You will be glad to know that recently in the budget session, Honorable Chief Minister Mamata Banerjee has allotted